এবার স্বাগত ভাষণ দেবেন মাননীয় জেলা শাসক পশ্চিম বর্ধমান শ্রী শশাঙ্ক শেঠি। गुड आफ्टरनून ऑल। आज 29 नवंबर 2018 पश्चिम बर्धमान জেলায় এই জনসভায় আমি স্বাগত জানাই আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে, যার উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় আমরা এগিয়ে চলেছি উন্নয়নের সোপান অতিক্রম করে। মঞ্চে উপস্থিত রাজ্যের সকল মন্ত্রী মহোদয়কে জানাই উষ্ণ অভ্যর্থনা, সকল বিশিষ্ট জনকে জানাই বিনম্র নমস্কার এবং আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। আর স্বাগত জানাচ্ছি বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের উপভোক্তাদেরকে, সামনে উপস্থিত দর্শক বৃন্দকে এবং সাংবাদিক বন্ধুদেরকে। রাজ্যের প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডকে তৃণমূল স্তর পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে বারে বারে রাজ্যের প্রতিটি জেলায় যাচ্ছেন, তার এই অঙ্গ হিসাবে আজকে পশ্চিম বর্ধমান জেলায় এই জনসভা আয়োজন করতে পেরে আমরা খুবই গর্বিত। আজকের এই অনুষ্ঠানে আসার জন্য সকলকে আর একবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি। নমস্কার। ধন্যবাদ মাননীয় জেলা শাসক পশ্চিম বর্ধমান শ্রী শশাঙ্ক শেঠি। এবার সেই বিশেষ সময় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই মঞ্চ থেকে আজকে 93টি প্রকল্পের শিলান্যাস করবেন এবং 49টি প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন, যার আর্থিক মূল্য যথাক্রমে প্রায় 160 কোটি টাকা এবং প্রায় 120 কোটি টাকা। সারা বছর ধরে এরকম উন্নয়ন সারা রাজ্য জুড়ে চলছে। এই মুহূর্তে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রকল্পের উদ্বোধন করলেন এবং শিলান্যাস করলেন। এবার সেই বিশেষ সময় প্রায় 16টি প্রকল্পের উপভোক্তাদের হাতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নিজে হাতে সুবিধেগুলো তুলে দিচ্ছেন। সবুজ সাথী তপশিলি জাতি ও উপজাতি উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম সমস্ত সবুজকে শিক্ষার আঙিনায় যুক্ত করলেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী। পরবর্তী সময়ে কন্যাশ্রী, যা আজ বিশ্বশ্রী, 510 জন উপভোক্তা আজকে সুবিধে গ্রহণ করবেন নারী ও শিশু কল্যাণ এবং সমাজ কল্যাণ দপ্তরের পক্ষ থেকে। পরবর্তী সময়ে নিঃসহায় মহিলাদের আবাস প্রদান, 25 জন মহিলাকে উনি এই সুবিধে তুলে দিচ্ছেন। সংখ্যালঘু বিষয় ও মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তরের পক্ষ থেকে। পরবর্তী সময়ে বাংলা আবাস যোজনা, মোট 405 জন উপভোক্তা পাচ্ছেন এই সুবিধে। এবার আনন্দধারা প্রকল্পে স্বনির্ভর বিভিন্ন দলকে ঋণ প্রদান করবেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী। সরকারি নির্দেশপত্র উনি তুলে দিচ্ছেন সকলের হাতে। এবার স্বামী বিবেকানন্দ স্বনির্ভর কর্মসংস্থান প্রকল্পের ঋণ প্রদান করবেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী।
স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি দপ্তরের পক্ষ থেকে। ব্যাংকের স্বীকৃতি এবং সরকারি নির্দেশ উনি তুলে দিচ্ছেন ওনাদের হাতে। পরবর্তী সময়ে আশ্রম হোস্টেলের তপশিলি উপজাতি ছাত্রদের জন্য ব্যাগ, খাতা, পেন ইত্যাদি বিভিন্ন সামগ্রী প্রদান করছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অনগ্রসর কল্যাণ দপ্তরের পক্ষ থেকে। পরবর্তী সময়ে লোকপ্রসার প্রকল্পের ভাতা প্রদান করছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী। মোট 505 জন আজকের অনুষ্ঠানে এই ভাতা গ্রহণ করবেন। পরবর্তী সময়ে কিষাণ ক্রেডিট কার্ড মোট 405 জন উপভোক্তা আজকে এই সুবিধে গ্রহণ করবেন। সুবিধে তুলে দিচ্ছেন কৃষি দপ্তরের পক্ষ থেকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গতিধারা প্রকল্প প্রচুর মানুষকে উনি বিশেষ সুবিধে তুলে দিচ্ছেন পরিবহন দপ্তরের পক্ষ থেকে। পরবর্তী সময়ে স্কুলে মাল্টি জিম স্থাপনের জন্য উনি আর্থিক সহায়তা প্রদান করলেন যুব কল্যাণ দপ্তরের পক্ষ থেকে। এখন সামাজিক সুরক্ষা যোজনার সুবিধা উনি প্রদান করছেন। আজকের অনুষ্ঠানে মোট 305 জন উপভোক্তা এই বিশেষ সুবিধাটি পাবেন। সুবিধা তুলে দিচ্ছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পরবর্তী সময়ে সেফ ড্রাইভ সেফ লাইফ প্রকল্পে হেলমেট প্রদান করা হচ্ছে আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের পক্ষ থেকে। প্রদান করছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মোট 505 জন উপভোক্তা আজকে এই সুবিধে পাবেন। পরবর্তী সময়ে মৎস্য দপ্তরের পক্ষ থেকে মৎস্য চাষীদের জন্য বিশেষ হাড়ি প্রদান করা হচ্ছে এবং মঞ্চের পাশের থেকে পশুপালন দপ্তর থেকে হাঁস মুরগির বাচ্চাও প্রদান করা হবে আজকের এই বিশেষ অনুষ্ঠানে। মোট 5740 জনকে আজকের সারা দিনে এই বিশেষ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। এবার সেই বিশেষ সময় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের সকলের জন্য বক্তব্য রাখছেন। এখানকার জেলা শাসক শশাঙ্ক, পুলিশ কমিশনার মিনা, আমার কলি গৌরব বিশ্বাস, মলয় ঘটক, ইন্দ্রনীল সেন, জিতেন তিওয়ারি, দাশু, বিধান উপাধ্যায়, উজ্জ্বল চ্যাটার্জি, তাপস ব্যানার্জি, আমাদের দুর্গাপুরের দিলীপ অগস্তি মেয়র, বিশ্বনাথ পারিয়াল, সাংসদ সুনীল মণ্ডল, অলোক মাঝি, আমাদের নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, আমাদের সহ উপাচার্য বিসি এখানে আছেন সাধনবাবু, উপস্থিত আরও
অন্যান্য সকল অতিথিবৃন্দ, মলয় ঘটক এবং আমার সমস্ত গ্রামসভা, পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা পরিষদ, ব্লক, লোকপ্রসার শিল্পী, ICDS, আশা, কন্যাশ্রী, যুবশ্রী, শিক্ষাশ্রী, স্বাস্থ্যসাথী, সংখ্যালঘু দপ্তর, SC/ST, OBC থেকে শুরু করে জেনারেল কাস্ট, টিচার্স, প্যারা টিচার্স থেকে শুরু করে সিভিক ভলেন্টিয়ার্স, হোমগার্ড, কনস্টেবল, IC থেকে শুরু করে BDOরা থেকে শুরু করে সকল ডিপার্টমেন্টের সকলে, এবং আমার কৃষক এবং শ্রমিক, মজদুর সব ভাই এবং বোনেরা, আমি আপনাদের সকলকে দুর্গা পুজোর অনেক অনেক অভিনন্দন জানাই, কালী পুজোর অভিনন্দন জানাই, দীপাবলির অভিনন্দন জানাই, ছট পূজার অভিনন্দন জানাই, গুরু নানকের জন্মদিন উপলক্ষে অভিনন্দন জানাই, হযরত মুহাম্মদের নবী দিবস হয়ে গেল, অভিনন্দন জানাই। আদিবাসীদের অনেক উৎসব হয়, করম উৎসব, হুল উৎসব থেকে শুরু করে আরও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, তাদের সকলকে ধন্যবাদ, অভিনন্দন জানাই। मैं आप लोगों को छठ पूजा का मुबारक देने चाहती हूँ, दीपावली को भी मुबारकबाद देने चाहती हूँ। आपका छठ पूजा के लिए हम बंगाल में भी छुट्टी डिक्लेयर किया है। आपका बिहार में अगर दुर्गा पूजा का छुट्टी एक दिन होता है, लेकिन हमारा इधर में आपका छठ पूजा के लिए 2 दिन छुट्टी होता है। इसी के लिए होता है कि चाहे होली हो, चाहे दीपावली हो, चाहे छठ हो, हम भी अच्छा से बनाते हैं। আপনারা জানেন আমরা দুর্গা পুজো যেমন করি, কালী পুজো করি, গুরু নানকের জন্মদিন পালন করি, নবী দিবস পালন করি, ঈদ মুবারক করি, বড়দিন করি, আদিবাসীদের উৎসব করি, ছাত্র যুব উৎসব করি, সেই রকম মনে রাখবেন সর্বধর্ম সমন্বয়ের ক্ষেত্রে আমাদের কোনো পার্থক্য নেই। ये हिंदुस्तान का एक ही जगह है बंगाल में, जिसपे चाहे बंगाली हो और हिंदी भाषी हो, एक साथ में इकट्ठा होके हम लोग रहते हैं। खाली चुनाव के लिए बंगाली हिंदी भाग बंटवारा कर दो, ये हम कभी नहीं करते हैं। हम हर तरह हर दफे हम सबको साथ एक साथ में मिलजुल के रहता है। ये हमारा देश का परंपरा है। মনে রাখবেন এটা আমাদের সবচেয়ে বড় পরম্পরা। আসানসোল নতুন জেলা পেয়েছেন, আসানসোলের মা ভাই বোনেরা আমার, জামুরিয়ার মা ভাই বোনেরা আমার, রানীগঞ্জের মা ভাই বোনেরা আমার, কুলটির মা ভাই বোনেরা আমার, বারাবণীর মা ভাই বোনেরা আমার, আসানসোলের মা ভাই বোনেরা আমার, জেনে রাখবেন आसनसोल जिला नया जिला कौन दिया है? हमारा सरकार दिया है, पहले कोई नहीं दिया है। आसानसोल জেলায় মনে রাখবেন মাল্টি সুপার হাসপাতাল করে দেওয়া হয়েছে, আসানসোল স্টেডিয়াম ভালো করে দেওয়া হয়েছে, স্টেট গভর্নমেন্টের প্রথম হোটেল ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট আসানসোলে হয়েছে, আসানসোলে জেলা আদালত তৈরি হচ্ছে, আসানসোলে ITI হয়েছে, পলিটেকনিক হয়েছে, স্টেডিয়াম হয়েছে, হাসপাতাল হয়েছে, কৃষিতীর্থ হয়েছে, কর্মতীর্থ হয়েছে, কোল্ড স্টোরেজ হয়েছে, ICCU হয়েছে, HDU হয়েছে, फेयर प्राइस डायग्नोस्टिक सेंटर হয়েছে, हिंदी कॉलेज भी हो रहा है, हिंदी कॉलेज हो गया ऑलरेडी, हिंदी कॉलेज भी आपको आसानसोल में हम कर दिया है। और आसानसोल में ये पता है कि 10% का अधिक जो जगह में हमारा उर्दू पॉपुलेशन है, उसको लिए उर्दू लैंग्वेज को और हिंदी भाषी को लिए भी हिंदी लैंग्वेज को हम लोगों ने हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज का हम लोग दरवाजा दिया है। नक्सलबाड़ीतेও हिंदी कॉलेज হয়েছে, বানারহাটেও হয়েছে, उर्दू एकेडमी হয়েছে। आसनसोल जिला में एक एयरपोर्ट बना दिया, ऑंडल एयरपोर्ट, जो आने वाला दिन बहुत बड़ा काम पे आएगा। ऑंडल एयरपोर्ट বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের নামে করা হয়েছে।
কারণ নজরুল ইসলামের জন্ম চুরুলিয়াতে, মনে রাখবেন, তাই করা হয়েছে। नजरुल एकेडमी पास दिए देखते पाबेन अनेक काज करा हয়েছে। आसानसोल में एयरपोर्ट हुआ है, कॉलेज हुआ है, यूनिवर्सिटी हुआ है। आसानसोल में क्या नहीं हुआ है? होटल इंस्टीट्यूट हुआ है, नया कॉरपोरेशन बना है, नया म्यूनिसिपैलिटी बन रहा है, नया फ्लाईओवर हो रहा है, नया रास्ता तैयार हो रहा है। क्या नहीं हुआ है? बहुत सारी चीज, नया जिला हुआ है, नया अदालत हुआ है, नया इंस्टीट्यूट हुआ है। हम लोग नया नया बहुत सारे काम आसानसोल में कर दिया है। इसको एडजेसेंट देखो, धनबाद डिस्ट्रिक्ट है, जाके पूछो क्या काम हुआ है। उधर में बीजेपी का गवर्नमेंट है, कुछ नहीं है। पर छोड़ के और कुछ नहीं होता है, खाली दंगा बनाता है, दंगा फसाद करते हैं और गुंडा गद्दारी करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। काम करना जिसको नहीं आता है उसको क्या बोलता है? नहीं है जिनको उभरते सूरज पर और डूबते हुए तारों के बात करते हैं। कोई काम नहीं आता है, कोई काम आता ही नहीं है उसका, तो काम कैसा करे? खाली दंगा फसाद बना के चाहते हैं कि आसानसोल में गड़बड़ हो। आसानसोल में गड़बड़ होने से आम जनता को काम कैसे होगा? आसानसोल में कितना इंडस्ट्री बनाया, डीवीसी को फिर हम 4000 एकड़ जमीन दिया है उसको इंडस्ट्री एक्सपांशन करने के लिए। बानपुर इसको में नया एयरपोर्ट जो रीजनल कनेक्टिविटी में आ रहा है। आपका आसानसोल में इसका नजदीक में बीरभूम है, बीरभूम डिस्ट्रिक्ट। মনে রাখবেন এখানে পাঁচমি আছে, সারা বিশ্বে द्वितीय बृहत्तम कोयलार खनि होच्छे। लाखों करीब लोगों का काम होगा एंसेलरी में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। पानागढ़ इंडस्ट्रियल पार्क दिया है। दुर्गापुर में एमएसएमई कितना हुआ है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बहुत सारे हुआ है। कितना रास्ता बनाया है, बहुत सारे काम हम लोगों ने किया है। आने वाला दिन भी हम करते जाएंगे। लेकिन ये दफे आपका पास हमारा विनती है, जो भी मर्जी कहे कहने दो, लेकिन हमारा सरकार का साथ, पूरा भरोसा का साथ, विश्वास का साथ आपको काम पे ध्यान रखना है। हमारा सरकार ही आपका काम करेगा और कोई नहीं करेगा। रानीगंजे अभी माँ भाई बोनेদের কাছে आवेदन করব। रानीगंज में मेरे को विनती होगा, उधर में धस प्रवण एरिया है। धस प्रवण एरिया जे कोनो समय धस नामते पारे। हम लोगों ने 45,000 घर बना रहा है। 45,000 बाड़ी हमरा तैयारी करছি हाउसिंग डिपार्टमेंट থেকে। आपका अपना के लिए, आपका परिवार के लिए, आपका जिंदगी बचाने के लिए इसको साथ देना जरूरी है। यदि अपना साथ ना दें, कभी भी अगर धस हो जाएगा तो पूरा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। और बहुत साल से इसका पूरा इंडिकेशन है। আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ করব হাত জোর করে, এবং জেলা অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকেও বলবো এই কাজটা ইমিডিয়েট করতে এবং মানুষকে সাথে নিয়ে। मेरे को पास खबर है बीजेपी का नाम पे, कभी सीपीएम का नाम पे और कभी कांग्रेस का नाम पे कहते हैं आप मत जाओ, वो हाउसिंग आप मत लो। अरे मत लो तो ठीक है, लेकिन जब जिंदगी बर्बाद हो जाएगा तो क्या करेगा? अगर उसका एरिया में आप बैठा रहेगा, कभी भी भूकंप आ जाए तो धस हो जाए तो पूरा एरिया नष्ट हो जाएगा, हजारों लाखों करीब लोगों को मृत्यु हो जाएगा। बीजेपी का बात मत सुनिए, सीपीएम का बात मत सुनिए, कांग्रेस का बात भी इधर में मत सुनिए। आपका जिंदगी बचाइए, हम आपका साथ में है। आपका ऊपर जबरदस्ती कुछ नहीं होगा। आपका साथ मिलके ही हमें काम करने चाहती हूँ, जैसे आपको भी जिंदगी बर्बाद ना हो। सरकारी खर्चा में आपको जो जगह है आपको पुनर्वासन हम कर देंगे। सरकारी खर्चा में आपको घर बना देंगे, जैसे आप अच्छा रहे जिंदगी भर। कभी सोने का टाइम रात में सोने जाता है तो डर ना आपको लगे कि हमारा कभी भी धस होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, এটা আপনাদের করতে হবে।
দুর্গাপুরের ডিপিএলকেও আমরা রিস্ট্রাকচারিং করব, কারণ दुर्गापुर डीपीएल ना तो बाजबे ना। आसनसोल में भी विद्युत का सेंटर करने के लिए हम लोग आज भी 2-3 विद्युत का सेंटर ओपन करने के लिए इनाग्रेट किया है। आज भी 2 प्राइमरी हेल्थ सेंटर का इनाग्रेट किया है। आज भी बहुत सारे प्रोग्राम है जिसको हम लोगों ने किया है। हमारा अभी इधर में जिला परिषद का सभापति सुभद्रा बाउरी हुआ है और हमारा इधर में जो समीर बाबू जो है वो हमारा वाइस प्रेसिडेंट भी है। एक साथ में ग्राम सभा को लेकर, पंचायत को लेकर, जिला परिषद को लेकर, कॉरपोरेशन को लेकर काम करें हम चाहते हैं। रानीगंज के लिए, जमुरिया के लिए, रानीगंज के लिए तो हम नया प्रोग्राम बना रहे हैं, जैसे नया रानीगंज बन जाएगा। दूसरी बात यह है, कुल्टी में आपका पानी का प्रॉब्लम है, जामुरिया में है, आपका बहुत सारे जगह में है। मैंने म्यूनिसिपैलिटी को बोला, हमारा गवर्नमेंट से भी इसको कर दिया, हमने बहुत सारे कर दिया, फिर आने वाला दिन भी करना है, जैसा इधर का लोग कोई बर्बाद ना हो जाए। आसानसोल इंडस्ट्रियल बेल्ट, अनेक इंडस्ट्री तैरी हुए पानागढ़े। हम आसानसोल का चेम्बर्स को, रानीगंज का चेम्बर्स को भी बधाई देने चाहूंगी। वो लोग भी हमारा साथ एक साथ होके काम करते हैं। हमारा किसान भाई बहन जो है, কৃষকদের জন্য আমি বলি, বর্ধমান জেলা সবচেয়ে বেশি কৃষি নির্ভর। আপনারা আমাদের খাইয়ে পরিয়ে রাখেন। আপনাদের বলি, কৃষকরা জেনে রাখুন, कृषि जमीन खाजना हमारे सरकार मुकुब कर दिए। कृषि जमीन के लिए कोई खाजना, कोई टैक्स आपको नहीं देने पड़ेगा, आपनादेर दीते होबे ना। और एक मने राखबेन, कृषि जमी जखन मिउटेशन करा हय तखन एकटा टाका लागतो। कृषि जमी म्यूटेशन का फीस भी हम लोगों ने विथड्रॉ कर लिया है, तो कृषि जमीन म्यूटेशन के लिए भी आपका कोई रुपया नहीं होना चाहिए। मने रखबेन, आपनार एलाकाय आरो नतून उत्पादन होक, एकदिके इंडस्ट्री और एकदिके कृषि भालोभाबे चलुक। संख्यालघु भाई बोनेरा जेने राखबेन, आमरा 1,70,00,000 छेले मेयेदेर स्कलारशिप दिएछि एबं संख्यालघु दफ्तर आमरा माइनरिटिर काजे सारा देशेर नम्बर 1, आमरा 1 नम्बरे आमरा समस्त काज करी आपनादेर सकलके दिए। आमार इमाम मुआज्जिनদের আমার অনেক সালাম, তারা আমাকে অনেক কাজ করেন এবং তারা আমাকে অনেক সাহায্য করেন হেলথের ক্ষেত্রে। ডেঙ্গু হোক, ম্যালেরিয়া হোক, चाहे पोलियो हो, चाहे हम का टीका हो, हर द्वारा वो लोग हमको मदद करते हैं। আপনাদের অনেক ধন্যবাদ। আমার হিন্দু ধর্মেও যারা আছেন, গুরুদ্বারা আছে, गिरजा আছে, मंदिर আছে, मस्जिद আছে, আমি সবাইকে বলবো সরকারি কাজে সাহায্য করুন। आप हमको एक गवर्नमेंट दिखाइए, একটা সরকার আপনারা আমাকে দেখান যেটা হচ্ছে 2 টাকা কিলো চাল, प्राय আমার রাজ্যের 8 কোটি লোক 2 টাকা किलो चाल पाए। मिलता कि नहीं मिलता? चावल 2 रुपया केजी मिलता कि नहीं मिलता? चावल मिलता है 2 रुपया केजी। बाहर से हम कितना रुपया में खरीद करते हैं? 25-26 रुपया में, लेकिन हम देते हैं 2 रुपया में। तो गवर्नमेंट को देना पड़ता है 1 केजी चावल में 23 रुपया गवर्नमेंट को देना पड़ता है घर से। हम चाहते हैं कि आप लोग अच्छा से रहे। सब दिते ना पारलेও मा भाई बोनेरा आमार एकटू मोटा भात, एकटू मोटा कापड़ तो আমরা দিতেই চাই। আমার কন্যাশ্রীর মেয়েরা আগে ছিল শুধু স্কুলে 750 টাকা, বাড়িয়ে এখন করা হয়েছে 1000 টাকা। 18 বছর বয়স পর্যন্ত পড়াশোনা চালিয়ে গেলে, বিয়ে না করলে সে পাবে 25,000 টাকা। কলেজেও কন্যাশ্রী করা হয়েছে K2 এবং ইউনিভার্সিটিতে যখন পড়বেন ইউনিভার্সিটিতেও K3 করা হয়েছে। অর্থাৎ ইউনিভার্সিটিতে আর্টসের জন্য পাবেন 2000 টাকা, সায়েন্সের জন্য পাবেন 2500 টাকা। কন্যাশ্রী यूनिवर्सिटीতেও করে দেওয়া হয়েছে। और आज जितना भी गर्ल चाइल्ड है बंगाल में, सरकारी इंस्टीट्यूट में, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, जितने भी हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैन हो, जो भी हो, सब कन्याश्री कर दिया हम।
जितना भी हमारा गर्ल चाइल्ड है सबको लिए कन्याश्री बना दिया। और पूरा स्कूल में पढ़ेगा, कॉलेज में पढ़ेगा, यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा। और जब उसको 18 साल होगा, अगर शादी नहीं करके पढ़ता है तो 25,000 रुपया उसको अकाउंट में, बैंक अकाउंट में सरकार डाल देंगे। फिर और एक स्कीम है, उसका नाम है रूपश्री। रूपश्री জেনেরাখুন 1,20,000 টাকা যাদের ফ্যামিলি ইনকাম, তাদের বাড়ি থেকে যদি গভর্নমেন্টকে দরখাস্ত করে বলে, বিডিওকে বা মিউনিসিপ্যালিটিকে বা পঞ্চায়েতকে বা কর্পোরেশনকে যদি বলে আমার মেয়ের বিয়ে দিতে পারছি না, गवर्नमेंट ताके 25,000 টাকা देवे। এটা হচ্ছে रूपश्री स्कीम। 25,000 रुपया हम शादी में देते हैं। जब बेटी का शादी होता है, अगर उसका मंथली इनकम 1,20,000 रुपया का अंदर हो तो गवर्नमेंट को पूछने से गवर्नमेंट उसको भी रूपश्री के लिए 25,000 रुपया दे देगा। ये हमारा रूपश्री स्कीम है। সবুজ সাথী আমরা সাইকেল দিচ্ছি সবাইকে, সংখ্যালঘুরাও পাচ্ছেন, শিডিউল কাস্ট শিডিউল ট্রাইব স্কলারশিপ পাচ্ছেন, সাইকেল পাচ্ছেন, কন্যাশ্রীরাও পাচ্ছেন, আমাদের ছেলেরাও পাচ্ছেন, সবাই পাচ্ছে। মনে রাখবেন কৃষকদের ভাতাও বাড়ানো হয়েছে, কৃষি ঋণ মুকুব করা হয়েছে। मजदूर भाई और बहनों, एक हम लेबर डिपार्टमेंट से एक काम किया है। আমাদের একটা স্কিম আছে, এর নাম হচ্ছে সামাজিক সুরক্ষা स्कीम। मलय घटक जो डिपार्टमेंट का मिनिस्टर है, इसका काम क्या है आपको पता है? अगर कोई गाड़ी चलाते हैं, अगर कोई ऑटो चलाते हैं, अगर कोई टोटो चलाते हैं, अगर कोई कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, अगर कोई दर्जी है, अगर कोई घर का काम करते हैं, अगर कोई लैंडलेस लेबर हो, अगर कोई दुकानदार हो, सबके लिए गवर्नमेंट एक स्कीम बनाया। क्या स्कीम? आप 25 रुपया मंथली देंगे तो गवर्नमेंट आपको लिए 30 रुपया देंगे। ऐसा करके 60 साल तक जब होगा आपको एक पेंशन मिलेगा, 2 लाख रुपया मिलेगा। आपका बेटी का शादी में तनख्वाह मिलेगा। हर साल आपको लड़का लड़की को पढ़ाने के लिए 4,000, 6,000, 8,000 ऐसा रुपया भी मिलेगा। अगर इसमें 60 साल का पहले कोई मर गया काम करते करते तो उसको लिए, अगर इनसे कोई एक्सीडेंट में मर जाएगा तो फिर 1.5 लाख रुपया मिलेगा। और ऐसे नेचुरल डेथ होगा तो उसको भी 50,000 रुपया मिलेगा। उसको हेल्थ का लिए भी पैसा मिलेगा। आप सब सामाजिक सुरक्षा बनाइए, सामाजिक सुरक्षा बनाइए। इवेन আমার যারা লোকপ্রসার শিল্পী ভাই বোনেরা আছে তারাও করতে পারে। আপনারা যারা লোকপ্রসার শিল্পী আছেন, আপনি 25 টাকা দিলে গভর্নমেন্ট আপনার ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে 30 টাকা দেবে এবং আপনার সারা জীবন একেবারে গ্যারেন্টি। মনে রাখবেন কন্ট্রাকচুয়াল ওয়ার্কার যা गवर्नमेंट के है, कैजुअल जरा गवर्नमेंट আছে, हमारा सरकार उसको लिए 60 साल कर दिया है चाकरी के लिए, नौकरी के लिए। कैजुअल वर्कर, कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर हमारा स्टेट गवर्नमेंट के जो है हम 60 साल कर दिया है। और एक बात है कि हमारा मजदूर के लिए हमारा हर तरह चिंता होता है। थोड़ा जूट इंडस्ट्री है, उसमें थोड़ा दिक्कत है, लेकिन तब भी हम लोग कोशिश कर रहा है उसमें मदद करने के लिए। चाय बागान में भी हम खाली 47 पैसा में चावल देते हैं। ऐसे चाय बागान बंद होने का बाद 3 महीना का बाद हम 1,500 रुपया उसको देते हैं, उसको मदद करने के लिए। ऐसे हमारा जो लोक पोषण शिल्पी 2 লক্ষ আছে আমাদের, আমি বলেছি তাদের সব ডিপার্টমেন্ট বিজ্ঞাপনে কাজ করাবে। তারা যেমন 1,000 টাকা করে মাসিক ভাতা পায়, তেমনি সরকারি সব কাজে তাদের কাজে লাগাবে যাতে তাদের একটা টাকা হয়। আইসিডিএস আশা যারা আছেন, আশার মেয়েদের মাইনে বন্ধ করে দিয়েছিল টোটালটাই। আমরা এখন আশার মেয়েদের 3,000 টাকা করে শুধু গভর্নমেন্ট দিই, প্লাস অন্যান্য জায়গার কাজ করে, পরে আরও অনেক টাকা তারা পায়। 6-7 হাজার টাকার মতো इनकम করে। आईसीडीएस पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का था, 90% देते थे, अभी तो 60% विड्रॉ कर लिया हमारा स्टेट से। उसको लिए भी हम 1,000 तक का बढ़ाया है। আমাদের 1 লক্ষ সিভিক ভলেন্টিয়ার্সকে চাকরি দিয়েছি আমরা, তারা পেত 3,000 টাকা, এখন 8,000 টাকা হয়ে গেছে। মনে রাখবেন আমাদের ইমামরা পায়, মুয়াজ্জিনরা পায়, আমাদের যারা এমনকি আমাদের প্যারা টিচার
কন্ট্রাকচুয়াল টিচার যারা ছিলেন, প্যারা টিচারদেরও মাইনে বাড়ানো হয়েছে, কন্ট্রাকচুয়ালদেরও মাইনে বাড়ানো হচ্ছে। সুতরাং এই ধরনের অনেক কাজ আছে। আমার অনেক প্রাণী মিত্র ছিল, অল্প কাজ, ছোট্ট কাজ, 400 টাকা পেত বামফ্রন্ট আমলে, আমরা ওদের 1500 টাকা করে দিয়েছি। এইরকম অনেক কাজ আছে যেগুলো আমরা করি। আমি আসানসোলবাসীকে কথা বলতে চাই, আসানসোল নতুন জেলা হয়েছে, আপনারা সব পেয়েছেন, সম্মানের চূড়োয় আছেন, আপনারা সসম্মানে কাজ করুন। আগামী দিন মনে রাখবেন, আসানসোলের সাথে ঝাড়খণ্ডের সম্পর্ক আমরা ভালো করব এবং তৃণমূল কংগ্রেস ঝাড়খণ্ডের অনেকগুলো সিটে আমরা এবার লড়াইও করব, ঠিক করেছি। ঝাড়খণ্ড ভালো থাকলে আমরাও ভালো থাকবো, আমরা ভালো থাকলে ঝাড়খণ্ডও ভালো থাকবে। ধানবাদ এক সময় আমাদের रेलर जोन रोलेर डिवीजन छिलो। मैं आप लोगों को कहने चाहूंगी कि बीजेपी कभी कभी बॉर्डर से आके माथा में फैक्ट्री लगा के और एक हाथ में झंडा और एक हाथ में डंडा लेके गुंडागर्दी करते हैं, लेकिन जब दिल्ली में पावर में रहते हैं तो जनता को सब लूट लेता है। बैंक से लोन नहीं मिलता है, बैंक का रुपया नहीं है, कोई काम नहीं है, बेरोजगारी बढ़ते जा रहा है। देश का यही हाल है। ये हाल बदल दो, बदल दो, बदल दो, दिल्ली को बदल दो। ये नारा आपको भी देना चाहिए, आपको हिंदी भाषियों को देना चाहिए। हमारे सकल के बोलबो, हिंदू भाषा को कौन नहीं पसंद करते हैं। मैं भी एक हिंदू हूँ, लेकिन हम बीजेपी का माफिक नहीं हूँ। हमें हिंदी है तो क्या है, हिंदी मेरा वतन है, हमें हिंदी है, हम हिंदू धर्म का है, हम दुर्गा पूजा करते हैं, काली पूजा करते हैं। क्या हमारा मुस्लिम भाई हमारा काली पूजा में नहीं आते हैं, दुर्गा पूजा में नहीं आते हैं? हम हिंदी है इसी के लिए हम क्या हमारा इधर में मुस्लिम को नहीं रहने देगा? बंगाल में 30% माइनॉरिटीज भी है, ये ध्यान में रहना चाहिए। उनका रमजान में हम जाते हैं, वो हमारा दुर्गा पूजा में आते हैं। हम बड़ा दिन नहीं मनाते हैं, हम केक नहीं खाते हैं, हम क्या गुरुद्वारा नहीं जाते हैं, हम क्या गुरुद्वारा का हलवा नहीं खाते हैं। एक क्या है, हर धर्म के लिए हर धर्म है। हम अगर छठ पूजा के लिए गंगा माई की पूजा करते हैं तो हम रमजान के लिए रोजा भी रखते हैं। क्या है इसका फर्क, क्या है? हम अगर गंगा पूजा में जाते हैं, गंगा माई की पूजा करके हम सूर्य देवता का पूजा करते हैं, पूजा करके कहते हैं ओम नमो जवा कुसुम संकर्षम काश्यप्यंग महादुतिम धंतरिंग सर्व पाप घनक पनतस्मि दिवाकरम। हम सूरज देवता को पूजा करते हैं। छठ पूजा में अगर ठेकुआ नहीं आते हैं तो मेरे को अच्छा नहीं लगता है। इसी तरीका से गुरु नानक जी का जन्मदिन हो तो हलवा नहीं आते हैं तो मेरे को अच्छा नहीं लगता है। हमें ईद होगा और समय का पायस नहीं आएगा तो क्या मेरे को अच्छा लगेगा? हमारा दुर्गा पूजा होगा, अगर हमको पास कोई भोग नहीं आएगा तो क्या हमको अच्छा लगेगा? हम हर धर्म को एक साथ में पसंद करते हैं। अगर टुकड़ा टुकड़ा हो जाए तो क्या हिंदू मुसलमान का साथ झगड़ा करेगा, मुसलमान हिंदू का साथ झगड़ा करेगा, पंजाबी इसका साथ झगड़ा करेगा, ईसाई का साथ झगड़ा करेगा, माँ बेटी में झगड़ा होगा, भाई बहन में झगड़ा होगा, तो क्या होगा? खाली खून गिरेगा, आंसू गिरेगा और कुछ नहीं होगा। इसी के लिए बताना है कि हमारा जिंदगी अगर कामयाबी करना है, जिंदगी काम से काम में लेना है तो जिंदगी एक सफर है। ये जिंदगी का नाम है रोशनी, जिंदगी का नाम है प्यार, जिंदगी का नाम है मोहब्बत, जिंदगी का नाम है एकता, जिंदगी का नाम है परंपरा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा रोशनी चाँद से होता है, रोशनी चाँद से होता है, सितारों से नहीं, मोहब्बत दिल से होता है, बातों से नहीं, झूठा बात कहने से नहीं। इसी के लिए मोहब्बत से काम लीजिए, प्यार से काम लीजिए, दोस्ती से काम लीजिए, एकता से काम लीजिए, एक साथ में रह के काम लीजिए। भाई कोई सादा होता है, कोई काला होता है तो क्या है, कोई फरसा होता है तो हम उसको प्यार करेंगे और जो काला होता है उसको हम क्या निकाल देंगे? कोई छोटा होता है देखने, कोई बड़ा होता है तो क्या फर्क है? कोई बंगाली भाषा कहते हैं तो कोई हिंदी भाषा कहते हैं, कोई उर्दू भाषा कहते हैं तो कोई औचिकी कहते हैं, कोई आदिवासी का बात करते हैं तो कोई शेड्यूल कास्ट का बात करते हैं,
कोई दलित का बात करते हैं तो कोई क्रिश्चियन का बात करते हैं। इसमें तो कोई फर्क नहीं है, सब हम एक है, एक होके हमको रहना चाहिए। আমি আজকে অভিনন্দন জানাচ্ছি আমার কন্যাশ্রীর সমস্ত বন্ধুদের, আমার সবুজ সাথীর বন্ধুদের, শিক্ষাশ্রীর বন্ধুদের। আমি বিশ্বাস করি কন্যাশ্রী আজকে বিশ্বশ্রী, সারা ভারতবর্ষ জুড়ে এই কন্যাশ্রীর ছেলেমেয়েরা একদিন দেশকে নেতৃত্ব দেবে। সবুজ সাথীর ছেলেরা, আমার সবুজ সাথীর বন্ধুরা একদিন দেশকে নেতৃত্ব দেবে। এই দেশ থেকেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নজরুল ইসলাম, গান্ধীজি থেকে শুরু করে, নেতাজি থেকে শুরু করে, ভগৎ সিং থেকে শুরু করে, আম্বেদকর থেকে শুরু করে, বিরসা মুন্ডা থেকে শুরু করে, রঘুনাথ মুর্মু থেকে শুরু করে, সমস্ত আমার বাউল ভাই বোন থেকে শুরু করে, ধামসা মাদল থেকে শুরু করে, লোকশিল্পী থেকে শুরু করে, কিষান থেকে শুরু করে, মজদুর থেকে শুরু করে সবাই দেশ করেছে। এই দেশটাকে রক্ষা করা আমাদের কাজ। देश को बंटवारा करने मत दो, देश को टुकड़ा करने मत दो, हिंदुस्तान को बेचने मत दो। और बंगाल तो हिंदुस्तान को दिशा दिखाएगा, बंगाल दिशा दिखाएगा, बंगाल सबका साथ में है। और आप लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए, पहले यूनाइटेड इंडिया में हिंदुस्तान जब एक था तब बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा सब एक ही था। कलकत्ता उसका कैपिटल था, उसको राजधानी था। इसके लिए बिहार का साथ, झारखंड का साथ, उड़ीसा के साथ हमारा नेबर जो स्टेट है इसका साथ हमारा रिश्ता बराबर अच्छा है और अच्छा रहेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों की कहानी कहनी चाहूंगी कि मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी कि आपको जो भी मर्जी है, ये बात याद रखिए, आपका कभी कोई बुरा दिन ना आए, ये हम चाहते हैं। खराब दिन যেন না আসে। যদি কোনোদিন কারো কোনো বিপদ হয় জানবেন কেউ না থাকলেও আমরা আপনার পাশে আছি। মা মাটি মানুষের সরকার, আপনাদের সরকার, মা माटी মানুষের সরকার। 7 साल में जो किया है आसनसोल के लिए और कोई नहीं कर सकता है, जो किया है बंगाल के लिए कोई नहीं कर सकता है। बहुत सारे स्कीम हमारा है। अभी कोई मर जाने से भी हम 2000 रुपया देता है, कब्र देने के लिए भी देते हैं, अंतिम संस्कार करने के लिए भी देते हैं। ऐसा गवर्नमेंट नहीं मिलेगा। মনে রাখবেন, এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি, সকল দেশের রানী সে যে মোদের বাংলা ভূমি। মনে রাখবেন, বাংলার কোনো তুলনা নেই। বাংলায় থেকে গর্ববোধ করুন। और बांग्ला में रहने से हमारा हिंदी भाषी भाई बहन को भी हम कहने चाहूंगी, कोई आपका साथ हमारा फर्क नहीं है। हम आपको प्यार करते हैं, आप भी हमको प्यार करते हैं। बंटवारा मत कीजिए, किसी का साथ बात मत कीजिए। ये मालूम होना चाहिए कि बीजेपी का काम है आसाम से बंगाली खदाओ, आसाम থেকে मेरे मेरे खून करे, और गुजरात से बिहारी खिलाओ। हम ये नहीं चाहते हैं। हम बिहारी को खदाने से भी हम रुकेंगे, हम बंगाली को खदाने से भी हम रुकेंगे। हम आपका सबका साथ, इज्जत का साथ, इंसानियत के साथ, इंसानियत का इंसाफ के लिए है, था और रहेंगे भी। আমি এই কথা বলে আমার মা ভাই বোনেদের বলবো, বাংলার মাটি নিয়ে গর্ব করুন, গর্ব করে বলুন, বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল, পূর্ণ হোক, পূর্ণ হোক, পূর্ণ হোক হে ভগবান। মনে রাখবেন, গর্ব করে বলতে হবে, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। गर्व करे बोलते হবে, साल फारसी का तमन्ना आज हमारा दिल में है, देखते हैं जोर किसका बाजुए कतील में है। गर्व करे बोलते হবে, खुदी को कर बुला कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रोजा क्या है। गर्व करे बोलते হবে, जय हिंद, बंदे मातरम, खुदा हाफेज, ইনশাআল্লাহ, জয় জহর। জহর খান বাঁধানো থেকে শুরু করে আদিবাসীদের জন্য আমরা অনেক কাজ করেছি। মনে রাখবেন, সবাইকে নিয়ে চলতে হবে, সুন্দরভাবে চলতে হবে। আর এই দেশটা গড়বার জন্য আগামী দিন বাংলা পারবে, বাংলা পথ দেখাবে। বাংলা চেয়ার চায় না, কিন্তু বাংলা মানুষকে কেয়ার করেন। আর যারা দিল্লিতে ক্ষমতায় আছে, আরবিআই থেকে সিবিআই, মানুষ বলছে টাটা বাই বাই, অনেক হয়েছে, আর চলবে না, আর নয়। অনেক জুলুম করেছো, অনেক অত্যাচার করেছো। মানুষকে ভালোবাসতে শিখো, মানুষকে ভালোবাসো, দেখবে মানুষও ভালোবাসবে। আমি এটুকু বলে আমার মায়েদের সকলকে আমার অন্তরের প্রণাম, বয়োজ্যেষ্ঠদের আমার অনেক শ্রদ্ধা, সমবয়সীদের অনেক অভিনন্দন, ছাত্রছাত্রীদের আমার প্রাণ ভরা ভালোবাসা।
ছাত্র এবং যৌবন অনেক কর্মসংস্থান হয়েছে, আরো কর্মসংস্থানের সুযোগ আসছে। ভালো করে জোট বেঁধে কাজ করুন, অনেক সুযোগ আসছে, এই সুযোগ আপনারা পাবেন। মনে রাখবেন, নতুন ইন্ডাস্ট্রিয়াল করিডোর তৈরি হচ্ছে, পানাগড় থেকে একেবারে দুর্গাপুর হয়ে চলে যাবে একেবারে বা পুরুলিয়া রঘুনাথপুর পর্যন্ত, দুপাশে ইন্ডাস্ট্রি তৈরি হবে, ওদিকে পাঁচমি হবে বীরভূমে। অনেক সুযোগ আছে, অনেক সুযোগ আছে, চিন্তা করার কোনো কারণ নেই। বাংলাটাকে ভালোবেসে নিজের মতো করে থাকুন, সব কিছু পাবেন। অনেক অনেক ধন্যবাদ, নমস্কার। আমি প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানাই, আর বিডিও এসডিও থেকে শুরু করে আইসি সবাইকে বলবো, মানুষের সাথে থাকুন, মানুষের পাশে থাকুন। আমি আমাদের যারা মিউনিসিপ্যালিটি, গ্রামসভা, পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা পরিষদে আছেন, তাদের সবাইকে বলবো, মানুষের সাথে থেকে কাজ করুন, মানুষের কাছে ছুটে যান, মানুষের পাশে থাকুন। অনেক অনেক ধন্যবাদ, নমস্কার, জয় হিন্দ, বন্দে मातरम, खुदा हाफिज, इंशाल्लाह, जय जवाहर, सत श्री अकाल जी। आप लोग सब अच्छा रहे, थैंक यू सो मच। সমগ্র পশ্চিম বর্ধমান জেলার মানুষের পক্ষ থেকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জানাই